بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع حضرت امام مسلم بن عقیل کی شہادت کے بارے میں ہے۔ کوفیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے خطوط لکھے کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ تقریباً 150 خطوط انہوں نے لکھے تھے حضرت امام پاک کو۔ حضرت امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ بنا کر کوفہ روانہ کر دیا۔ حضرت امام مسلم نے اپنے دونوں صاحبزادوں محمد اور ابراہیم کو ساتھ لیا اور کوفہ پہنچ گئے۔ کوفہ والے تو پہلے ہی آپ کے انتظار میں تھے، دیکھتے ہی باغ باغ ہو گئے۔ آپ کا شاہانہ استقبال کیا گیا۔ آپ کے کوفہ پہنچنے کی خبر تمام شہروں میں پھیل گئی۔ لوگ جوک در جوک آپ کی زیارت اور ملاقات کے لیے حاضر ہونے لگے۔ کوفہ میں ایک نئی بہار آ گئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آسمان سے چاند اتر آیا ہو۔ چہروں سے نور کی شعاعیں نکل رہی تھی۔ اس کے بعد بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ 12,000 اور ایک روایت میں کہ 40,000 کوفیوں نے پہلے ہی دن حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ بیعت انہوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت امام حسین کی بیعت لی تھی۔ ان بیعت کرنے والوں میں بڑے بڑے علماء، فضلاء، رؤساء اور امراء بھی تھے، قبیلوں کے سردار اور بہت بڑے بہادر اور شجاع بھی تھے۔ حضرت امام مسلم نے عراق والوں کے اس جذبہ محبت اور جوش عقیدت کو دیکھ کر فوراً حضرت امام حسین کی خدمت میں خط لکھ دیا۔ حضرت امام حسین کی خدمت میں جو خط لکھا، اس میں یہ لکھا کہ عراق والے بڑے مخلص اور دیانتدار ہیں اور بے شک تمام کوفہ والے آپ کے ساتھ ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے 12,000 ایک روایت میں 18,000 اور ایک روایت میں ہے کہ 40,000 کوفیوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ آپ جلدی تشریف لے آئیں تاکہ یزید کی غیر اسلامی حکمرانی سے نجات پا سکیں اور دین حق کی تائید ہو سکے۔ جب یزید کو ان حالات کا علم ہوا کہ حضرت امام مسلم کوفہ پہنچ چکے ہیں اور لوگ انتہائی جوش و خروش سے ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اور خود امام حسین بھی تشریف لانے والے ہیں، تو اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی اور اسے تخت حکومت لرزتا ہوا نظر آیا۔ سمجھ گیا کہ اب خیر نہیں۔ یزید نے فوراً اپنے وزیروں اور مشیروں کو بلا کر مشورہ کیا اور پریشان ہو گیا۔ یزید نے حاکم بصرہ عبید اللہ بن زیاد کو حکم بھیجا کہ کوفہ پہنچ کر لوگوں کو امام حسین کی بیعت سے روکیں اور حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً وہاں سے نکال دیں، اور اگر ان کی طرف سے کوئی مزاحمت کرے تو اسے قتل کر دیں۔ ابن زیاد یزید کا حکم پاتے ہی کوفہ روانہ ہو گیا۔ ابن زیاد بڑا مکار اور دغا باز انسان تھا۔ وہ چہرے پر نقاب ڈال کر شام کے وقت حجازی راستے سے کوفہ میں داخل ہوا، جہاں کوفہ والے بڑی بے چینی سے سیدنا امام حسین کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ جب ابن زیاد کوفہ میں داخل ہوا، لوگ یہ سمجھے کہ سیدنا امام حسین کی سواری پہنچ گئی ہے، اور لوگ بڑی کثرت سے خوشی اور مسرت کے نعرے لگاتے ہوئے جمع ہو گئے اور ہر طرف مرحبا ابن رسول کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ یہ ظالم جلتا رہا، کچھ نہ بولا۔ اسے پتہ چل گیا کہ اکثریت حسین ابن علی کی طرف ہے۔ ابن زیاد آہستہ آہستہ بڑی خاموشی سے قصر امارت میں داخل ہو گیا، جامع مسجد میں لوگوں کو جمع کیا اور ایک وحشت ناک تقریر کی۔ ان میں زبردست خوف و ہراس پیدا کر دیا اور کہا کہ خبردار، مجھے یزید کی طرف سے کوفہ کا بااختیار حاکم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم یزید کو خلیفہ ماننے سے عنایت کر رہے ہو۔ اس کے لیے مسلم بن عقیل ان کی طرف سے بطور نمائندہ یہاں موجود ہیں۔ خبردار، کان کھول کر سن لو، اگر تم باز نہ آئے تو تمہارے بچوں کو ذبح کر دیا جائے گا، تمہارے سر تن سے جدا کر دیے جائیں گے۔ ادھر سیدنا امام مسلم کو جب اس انقلاب کا علم ہوا تو حیران پریشان ہو گئے۔ امام مسلم ہانی بن عروہ کے گھر تشریف لے گئے۔
जो एक पक्के। हानी ने अर्ज़ की, या इमाम, ऐसे हालात में यहाँ तक आपकी हिफाजत और खिदमत का ताल्लुक़ है, मैं इसमें कोई कसर बाकी ना छोड़ूंगा, बल्कि आप मुतमिन रहें। हानी ने आपको अपने मकान की एक महफूज जगह में छुपा दिया और खुफिया तौर पर दिल में आले रसूल की मोहब्बत रखने वाले लोग जौक दर जौक आना शुरू हो गए। इधर अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने सैयदना इमाम मुस्लिम की तलाश के सिलसिले में कई दिन लगा दिए, लेकिन कहीं से आपकी जाए अकामत का इल्म ना हुआ। हैरत तो ये है कि कूफा में बिला आखिर इसने एक ग़ुलाम मुअक्कल को 3000 दिरहम देकर सुराग लगाने के लिए मुकर्रर किया। इस जसूसी के बाद मुअक्कल ने अपनी सारी खबर इब्ने ज़ियाद को बता दी। इसके बाद इब्ने ज़ियाद ने मोहम्मद बिन अशश को बुलाया और कहा कि हानी कई रोज़ से नहीं आए, इन्हें बुला कर लाओ। इसने कहा, मालूम होता है कि वो बीमार हैं। इब्ने ज़ियाद कहने लगा, तुम जाओ और हर सूरत इनको साथ लाओ। फिर वो हानी के पास गए और इन्हें इब्ने ज़ियाद का पैगाम दिया कि वो आपको बुला रहे हैं। वो भी इस मामले में बेखबर थे। हज़रत हानी बग़ैर किसी को इत्तला दिए हुए अकेले ही चले गए। देखा कि इब्ने ज़ियाद के तेवर बदले हुए हैं। इब्ने ज़ियाद देखते ही कहने लगा, मौत के मुँह में आगे हो। आपने कहा, क्यों, क्या बात है? कहने लगा, तुमने मुस्लिम बिन अकील को अपने पास पनाह दी है। हज़रत हानी ने कहा, तुझे किसने बताया? इसने अपने जसूस मुअक्कल की तरफ इशारा किया। हानी ने जब इस शख्स को देखा तो समझ गया। आपने जवाब दिया कि मैंने मेहमान को पनाह दी है, क्या हर्ज है? इब्ने ज़ियाद कहने लगा, अच्छा यही बात है तो मुस्लिम को मेरे हवाले कर दो। हज़रत हानी ने जवाब दिया, ये हो ही नहीं सकता। कहने लगा, फिर आप भी ज़िंदा नहीं बच सकते। आपने फरमाया, खुदा की कसम, मैं हरगिज़ इनको तेरे पास पेश नहीं करूँगा, इसलिए कि तू मेरे मेहमान को कत्ल कर डालेगा। हज़रत हानी ने कहा, खुदा की कसम, मैं जान तो दे सकता हूँ, मगर अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को किसी कीमत पर तेरे हवाले नहीं कर सकता। ये बात सुनकर इब्ने ज़ियाद बोला, अगर तुमने उसको हाज़िर ना किया तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दूँगा। हज़रत हानी ने फरमाया, अगर तुम ऐसा करोगे तो इर्द गिर्द तलवारें ही तलवारें चमक उठेंगी। जब इब्ने ज़ियाद ने यह बात सुनी तो आग बगोला होकर उठे और अपने आसा से हज़रत हानी को इस कदर मारा कि इनके मुंह के रुखसार फट गए, नाक की हड्डी टूट गई, खून के फुहारे बहने लगे, तमाम बदन बमा लबास रंगीन हो गया। इस ज़ख्मी हालत में सिसकते हुए आपको कमरे में कैद कर लिया गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। थोड़ी ही देर बाद सारे कूफा में खबर फैल गई कि हज़रत हानी को कत्ल कर दिया गया है। और फिर सैयदना इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि मुअज़्ज़ज़ मेज़बान इन्हीं की वजह से मसाइब में गिरफ़्तार रहे और अभी तक घर नहीं आए। आप बाहर निकले, चंद अफराद आपके साथ थे। जब इब्ने ज़ियाद को पता चला कि मुस्लिम बिन अकील लश्कर लेकर आ रहे हैं और किले का मुहासरा करने लगे हैं, तो उसने अपनी फ़ौज को कहा कि इन लोगों को डराएं, धमकाएं। लोग इब्ने ज़ियाद के खौफ से भागना शुरू हो गए और हज़ारों में से सिर्फ 500 के लगभग आदमी हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील के साथ रह गए। इतने में नमाज मगरिब का वक्त हो गया तो आप कूफा की जामिया मस्जिद में नमाज की अदायगी के लिए तशरीफ़ ले गए। जब अज़ान के बाद जमात खड़ी हुई और इमामत के फ़राइज़ हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे थे तो सब आपके पीछे खड़े थे, लेकिन जब आपने सलाम फेरा तो देखा कि पीछे एक शख्स भी मौजूद नहीं था। आप समझ गया कि कूफा वाले बेवफाई कर गए, मगर अब क्या हो सकता था। और हज़रत इमाम मुस्लिम रात की तारीकी में तन्हा रह गए, कोई रास्ता भी बताने वाला न रहा। परेशान हैं कि किधर जाएं और कहाँ रात गुजारें। हैरत है कि कूफा के तमाम मकानों के दरवाजे बंद हो चुके हैं और सोचते हैं कि बदअहद कौम ने बेवफाई की जो इनकी मशहूर है। इस बेकसी और बेबसी के आलम में जा रहे हैं कि एक तुआ नामी बुढ़िया के दरवाज़े पर जा पहुँचे। आपने इस औरत को देखकर फरमाया, ए अल्लाह की बंदी, तुझ पर सलाम हो, मुझे कुछ पानी पिला दो। आज इमाम प्यास से कूफा की गली कूचों में फिर रहे हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं। इस औरत ने इसी वक्त पानी का प्याला पेश किया। आपने नोश फरमाया, अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की। जब इस बुढ़िया ने आपकी खस्ता हाली देखी तो पूछा, किबला आप कौन हैं? फरमाया, मैं गरीबुल वतन मुस्लिम बिन अकील हूँ। इस पाक नाम का सुनना था कि वो बुढ़िया आपके कदमों में गिर गई और नहायत ही इज़्ज़त तकरीम से अपने घर के अंदर ले गई। बिस्तर बिछा दिया, खाना तैयार करके पेश किया। रात का काफ़ी अरसा गुजर चुका। जब रात का काफ़ी हिस्सा गुजर गया,
इस औरत का बिलाल नामी लड़का घर आया। इसने पूछा, ये शख्स कौन है? तुआ ने कहा, इमाम मुस्लिम बिन अकील है, अहले बैत से हैं। हमारी खुश नसीबी है कि ये अजीम मेहमान हमारे घर तशरीफ़ ले आए हैं। इनकी खिदमत में हमारी निजात है। इसके बाद लड़का सो गया और हज़रत इमाम मुस्लिम इबादत खुदाबंदी में मशगूल हो गए। इधर जनती माँ के जहन्नमी बेटे ने इब्ने ज़ियाद को ख़बर दी कि मुस्लिम तो हमारे घर में मौजूद हैं। इब्ने ज़ियाद ने अपनी फ़ौज भेजी। तकरीबन 70 आदमी तलवारें और घोड़े लेकर वहाँ पहुँचे और इस बुढ़िया के मकान का मुहासरा कर लिया। अचानक घोड़ों की टापों और लोगों के शोर गुल की आवाज़ कानों तक पहुँची तो सैयदना इमाम मुस्लिम तनहा तलवार लेकर बाहर निकलने लगे। बुढ़िया ने कहा, हजूर आप बाहर ना जाइए। आपने फरमाया, मुझे अंदेशा है कि कहीं जालिम मकान को आग ना लगा दे। मैं खुद ही इनके सामने चला जाता हूँ। जब आप बाहर तशरीफ़ ले आए और आते ही इब्ने ज़ियाद के लश्कर पर टूट पड़े। आपके हमले से कितने ही बहादुरों ने दिल छोड़ दिए, हत्ता के 41 आदमी मारे गए और बहुत से ज़ख्मी हुए। मोहम्मद बिन अशश घबरा कर घोड़े को दौड़ाता हुआ इब्ने ज़ियाद के पास गया और बताया कि हमारे 41 आदमी अकेले मुस्लिम बिन अकील ने मार डाले हैं, हमें और आदमी दीजिए। इब्ने ज़ियाद मोहम्मद बिन अशश पर टूट पड़ा और कहने लगा कि इतने बुज़दिल हो, सिर्फ़ एक आदमी पर काबू नहीं पा सके, अगर तुम्हें किसी फ़ौज के मुकाबले में भेजा जाए तो फिर तुम्हारा क्या हाल होगा? अशश ने जवाब दिया, अमीर, क्या आपका ख्याल है कि आपने मुझे किसी कोफा के सब्ज़ी फरोश के पास भेजा है? क्या तू नहीं जानता कि वे कौन है? इसकी रगों में भी अली का खून है, वो आले नबी और औलादे अली है। इब्ने ज़ियाद ये सुनकर चकरा गया, कहने लगा कि इसको अमन और सलामती का धोखा देकर इस बहाने से हमारे पास ले आओ। इब्ने ज़ियाद इसे ईमान देगा और कुछ ना कहा जाएगा, वरना इसके बगैर तुम इस पर काबू ना पा सकोगे। इब्ने अशश घोड़ा दौड़ाता हुआ आया। क्या देखता है कि मुकाबला हो रहा है और सैयदना इमाम मुस्लिम शदीद ज़ख्मी हालत में हैं। ज़ख्मों की कसरत और खून के ज़्यादा बह जाने और शिद्दत प्यास से निडाल होकर दीवार के साथ टेक लगाकर हज़रत इमाम मुस्लिम बैठे हैं। इसी आसना में बुढ़िया को आवाज़ दी कि थोड़ा सा पानी पिलाओ। वो जल्दी से पानी लेकर हाज़िर हुई कि हज़रत पानी भी ना पी पाए कि एक ज़ालिम ने इस कदर ज़ोर से पत्थर मारा कि हज़रत इमाम मुस्लिम के मुंह पर लगा और होंठ मुबारक शहीद हो गए। आपने फरमाया, शुक्र है ऐ अल्लाह, अगर ये दुनियावी पानी हमारी किस्मत में नहीं तो हौज़े कौसर से सराब हो जाएंगे। फिर एक ज़ालिम ने और पत्थर मारा जो सैयदना इमाम मुस्लिम की पेशानी अक़दस पर लगा। खून का फुआरा फूट पड़ा, बदन अक़दस लहू लहान हो गया, दाढ़ी और चेहरा मुबारक खून आलूदा हो गया। फिर आपने फरमाया, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे इस कदर पत्थर मार रहे हो जैसे कुफ़ार को मारे जाते हैं, हालांकि मैं तो नबी के ख़ानदान अहले बैत से हूँ। क्या तुम्हें आले रसूल का कोई पास नहीं? इसके बाद एक ज़ालिम ने पीछे से सरे अक़दस पर ऐसा ज़ोर का वार किया कि आप गिर गए। ज़ालिमों ने खस्ता बदन हालत में लाचार देखकर आपको पकड़ा और घोड़े पर सवार करने लगे। आपने फरमाया, मुझे कहाँ ले जाने लगे हो? इब्ने अशश ने कहा, इब्ने ज़ियाद आपको ईमान देगा। आपने फरमाया, ज़ालिमों, अब मुझे अमान का धोखा देकर कत्ल करना चाहते हो? कहने लगा, नहीं। आपने फरमाया, तुम पर कुछ एतबार नहीं। सैयदना इमाम मुस्लिम को कूफा इब्ने ज़ियाद के पास ले आए। इब्ने ज़ियाद बोला, तूने यहाँ आकर लोगों को फितना में डाल दिया है। आपने चाहा, तुम्हारा इल्ज़ाम गलत है। यहाँ के लोगों ने हमें दावत देकर बुलाया, हम तब आए ताकि लोगों में किताबुल्लाह और सुन्नते रसूल पर अमल हो। इब्ने ज़ियाद ने कहा, इसका हकदार यजीद है। इमाम मुस्लिम ने फरमाया, जो सुन्नते रसूल को बदलना चाहे और शराब नोशी करे, फुस्को फजूर इसकी गुटी में रच गया हो, जो तारके नमाज हो, दीन की हदों को तोड़ने वाला हो, क्या वो अमीरुल मोमिनीन बन सकता है? हरगिज़ नहीं। इब्ने ज़ियाद के पास इसका कोई जवाब ना था, बल्कि कहने लगा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। आपने फरमाया, ज़ालिम, मुझे पता है जो तू करने वाला है, लेकिन मेरी चंद वसीयतें हैं, अगर इन्हें पूरा कर देगा। कहने लगा, बताओ क्या हैं? आपने फरमाया, नंबर 1, मुझ पर कूफा वालों के 700 दिरहम कर्ज़ हैं। मेरी मौत के बाद मेरी तलवार और ज़िरा बेचकर मेरा कर्ज़ अदा कर देना। नंबर 2, मेरी कत्ल के बाद मेरी लाश को रंगीन खून के इसी लिबास में दफन कर देना। नंबर 3, सैयदना इमाम हुसैन को लिख दें कि आप कूफा ना आएँ, कूफा वाले वाकई बेवफा हैं। नंबर 4, मुझे मेरे बच्चों के बारे में कोई इल्म नहीं कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, उनका ख्याल रखना और उन्हें सलामती से मदीना पहुँचा देना।
سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور ہیں، مگر ابن زیاد کے سامنے انتہائی جرأت مندانہ انداز اور کفت ایمانی سے کلام فرما رہے ہیں۔ گویا کہ اس پیکرے صبر و رضا نے یہ ثابت کر دیا کہ جان تو دے دوں گا مگر دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو سرنگوں نہیں ہونے دوں گا۔ آخر عبید اللہ ابن زیاد نے جلاد کو حکم دیا کہ مسلم کو عمارت کی چھت پر لے جا کر قتل کر دیا جائے اور لوگوں کو بتا دیں کہ جو کوئی حکومت یزید کی مخالفت کرے گا اس کا یہی حال ہوگا۔ چنانچہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محل کی چھت پر لے جایا گیا۔ آپ نے نیچے دیکھا کہ مخلوق کا ایک ہجوم ہے، کوئی یار و مددگار نہیں، کوئی غمخوار غمگسار نہیں اور کوئی اپنا یار نہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ ادھر اس ظالم دنیا کے کتے نے اس زور سے تلوار کا وار کیا کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور تن سے جدا کر دیا۔ سر انور نیچے گرا تو ظالم نے تن اقدس کو جب سر تن سے جدا کیا تو تن کو بھی نیچے گرا دیا۔ اس طرح 9 ذی الحج کو آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔